Electric current produces different types of effects in different media. Like it produces the heating effect, it also produces a magnetic effect, and it also produces the chemical effect. Let us discuss all these things today. Hello, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy, and today's very first topic is heating effect of electricity. When you connect a cell through wires with some electrical device, means LED or something else, then in that case after some time that wire gets heat up. This is basically the heating effect of electricity. The heating effect of electricity is also known as Joule's law of heating. Joule's law of heating. And this heating effect is used in case of electric press, electric heater, oven, toaster, and many more items, electrical items. Now, the heat produced in the wire is represented by H, and it is directly proportional to square of current. करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस दैट इज ऑफर्ड बाय द material from which the wire is made up of, and it is also directly proportional to the time. Time means for how much time the current is passed through the wire. So current is represented by I, resistance is represented by R, time is represented by T, and I is in amperes, R is in ohms, and T is in seconds. So from here that formula that comes out to be, that is H is equal to I square R T, and H SI unit is joules. H SI unit is joule. This is the SI unit of heat. As we know, voltage V is equal to I multiply by R. So put that value here, and here heat is coming out to be V multiply by I multiply by T, or this can be represented as H is equal to V square divided by R multiply by T. By putting these values here, you can find these two formulas. Now, in the electrical appliances, the wire is made up of different types of materials. First of all, we are going to discuss about the heater. The electrical device which work on heating effect of electricity contains a wire that gets heat up, and this heated wire is basically known as element, or you can say it is also known as heating element. एलिमेंट भी कहा जाता है इसको, और हीटिंग एलिमेंट भी कहा जाता है. दिस इज अ स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर. जो आपकी स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी होती है उसके अंदर साइड में स्पाइरल जो डाला होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. यहाँ ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर. ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर में जो हमारे पास ये है, ये वायर है. जब इसमें से करंट पास होता है, करंट कैसे पास होगा, जब ये प्लग जो है आप यहाँ कनेक्ट करोगे और इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन करोगे, देन इन दैट पर्टिकुलर केस फ्रॉम दिस एलिमेंट, ये जो लाइन वाला पोर्शन है, दिस इज द बेसिकली एलिमेंट. इसमें से जब करंट पास होगा तो वो क्या होगा, हीट अप होगा, और वो हीट अप होगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कुछ ना कुछ. उस रेजिस्टेंस की वजह से इसमें से जो हीट एनर्जी जो जनरेट होगी, उसकी वजह से ये वायर जो होती है ये कुछ टाइम के बाद कैसी हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है. अब इस हीटिंग एलिमेंट के अंदर कितनी हीट जनरेट हुई है, दैट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर.
length of the wire, thickness of the wire, thickness of the wire, how much electric current is passed through it, इलेक्ट्रिक करंट कितना पास हुआ है, पास थ्रू द वायर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर, हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर. This is the first, this is the second point, and the third point is how much electric current pass through the wire, and fourth one is for how much time this electric current is passed. For how much time this electric करंट इज पास्ड. इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि वायर एलिमेंट जो है वो कितना हीट अप होगा. अब ये जो वायर जो बनी हुई है ये हर एक मतलब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर तो उसमें अलग मटेरियल यूज किया जाता है. अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर तो उसके अंदर अलग मटेरियल यूज किया जाता है. इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑल्सो, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है. अब जब बात करते हैं हम डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो यूज किए जाते हैं. नाइक्रोम जो है दैट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर और यू कैन से टोस्टर. टोस्टर में अगर आपने देखा होगा तो बैक साइड में क्या होती है, एक वायर होती है, मतलब एलिमेंट होता है जो क्या होता है स्पाइरल शेप में होता है. कभी ध्यान से देखना आपको मिल जाएगा घर वाले इलेक्ट्रिक टोस्टर में भी. दैट इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम. अब दूसरा जो है दैट इज टंगस्टन जो यूज किया जाता है. टंगस्टन जो यूज करते हैं दैट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब. अब इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो टंगस्टन होता है जब उसमें से करंट पास होता है तो उसका टेम्परेचर या वो टेम्परेचर जो है वो इतना हीट अप हो जाता है कि वो ग्लो करने लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब जो है दैट प्रोवाइड्स लाइट टू यू एंड ऑल्सो हीट एनर्जी टू यू. ठीक है, ये हो गया हमारा टंगस्टन के बारे में कि हमारा वो बल्ब के अंदर यूज किया जाता है. इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कॉपर जो है वो यूज किया जाता है किसके अंदर, वायर्स के अंदर या इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर. इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर भी नाइक्रोम वाली वायर ही यूज की जाती है. नाइक्रोम वाली वायर को अगर देखा हो कभी ध्यान से तो क्या होता है, इसके अंदर हमारी एक और प्लेट जो है व्हाइट कलर की वो फिक्स होती है इस मटेरियल के अंदर. दैट प्लेट इज बेसिकली मेड अप ऑफ, ये जो प्लेट है हमारे पास जिसके अंदर ये नाइक्रोम वायर फिक्स होती है दैट इज बेसिकली मेड अप ऑफ एस्बेस्टॉस और काओलिन. ठीक है, ये व्हाइट कलर की प्लेट होती है. जनरली जब हम नया हीटर खरीद के लेके आते हैं इलेक्ट्रिक हीटर, और इस एस्बेस्टॉस प्लेट को फिक्स किया जाता है किसके अंदर, जो ये मेटेलिक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है या आप कह सकते हो मेटेलिक जो बाउल लाइक स्ट्रक्चर, मेटेलिक बॉडी है उसके अंदर इसको फिक्स किया जाता है. ये बॉडी जो होती है ये मेटेलिक भी हो सकती है और आपकी एस्बेस्टॉस बॉडी भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है. अब ये वर्क कैसे करेगा, जब प्लग जो है इलेक्ट्रिक प्लग जो है आप इसके अंदर इंसर्ट करोगे और स्विच को ऑन करोगे तो करंट जो है वो पास होगा किस में से, इस एलिमेंट में से. ये एलिमेंट जो नाइक्रोम का बना हुआ है वो क्या करेगा, कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. उस रेजिस्टेंस की वजह से ये वायर जो होती है कुछ टाइम के बाद आफ्टर फ्यू सेकेंड्स इट विल गेट रेड हॉट वायर. वो रेड हॉट वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और इसके ऊपर आपने जो भी वेसल रखा हुआ है वो अपनी हीट जो है वो उस वेसल को ट्रांसफर कर देता है. दिस इज बेसिकली द वेसल विच इज पुट ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर. ठीक है, फिर ये वेसल के अंदर जो भी आप आइटम रखोगे, लाइक वाटर रखा है तो वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर फ्यू टाइम. इन दिस वे दिस इलेक्ट्रिक हीटर इज वर्किंग. Now the next effect is magnetic effect of current.
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे एक चीज बताई थी कि हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को फॉर्म करने के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को जनरेट करने के लिए। बट बिफोर डिस्कसिंग हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर फॉर्म और हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर प्रोड्यूस्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कंपास जो है वो आपने देखा होगा, ठीक है। कंपास जो होता है उसकी निडल जो होती है वो बाय डिफॉल्ट कौन सी डायरेक्शन में होती है? नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अब ये मान लो कि कंपास है, ठीक है। कंपास एक छोटा सा होता है, बिल्कुल आपका वॉच जो है वो भी बड़ी है। इसकी निडल जो है वो हमेशा पॉइंट करती है किस डायरेक्शन के अंदर? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। नीडल इज ऑलवेज पॉइंटिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब क्या करते हैं, इसमें हम बाइंड कर देते हैं कुछ वायर्स को। दीज आर द वायर्स, ठीक है, जो हमने क्या करनी है? वाउंड करनी है, बाइंड करनी है इसके ऊपर। यहां पर ये डॉटेड दिखा रही हूं मैं, ताकि क्योंकि ये कंपास के नीचे से भी आ रही है। चारों तरफ हमने क्या किया? कंपास को वाउंड कर दिया। अब इसको मैं कनेक्ट करती हूं किसके साथ? एक की के साथ में, एंड देन बैटरी के साथ, ठीक है। व्हेन दिस स्विच एस इज क्लोज्ड, जब स्विच जो है वो एस जो होगा वो क्लोज होगा, एस इज क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट क्लोज होगा। सर्किट क्लोज होगा तो करंट क्या करेगा? दिस एस बिकम्स, यू कैन से दिस इज क्लोज्ड, ठीक है। क्लोज के लिए मैंने यही दिखाया है कि ये क्या हो गया है? स्विच एस बंद हो गया है। तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पर क्या होगा? करंट आई फ्लो करना स्टार्ट करेगा। जब करंट आई फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो ये जो कंपास है, दिस इज द कंपास, इस कंपास के अंदर, नीडल के अंदर कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। फिर से नीडल जो होगी कंपास की, दैट गेट्स डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ साउथ पोजीशन। अब जब एस जो है वो ओपन किया तो इट मींस नीडल जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाती है। नीडल रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मींस दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मींस नीडल की दो एंड्स हैं, वन इज पॉइंटिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन एंड अनदर वन इज पॉइंटिंग इन द साउथ डायरेक्शन। फिर से जब आप एस क्लोज करोगे तो नीडल जो है वो फिर से डिफ्लेक्ट होगी। तो इट मींस क्या हुआ कि जब करंट जो है वो इसमें से पास हो रहा है वाइंड वायर में से, ये जो है ये वायर है बेसिकली, दीज आर द वायर्स, ठीक है, जो नीचे से टर्न होकर के इसके पास आ रही हैं। जो कंपास जो होता है दैट इज बेसिकली नाउ एक्टिंग लाइक का, वो होता क्या है? बेसिकली एक मैग्नेट होती है। मैग्नेट है तभी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है? पॉइंट कर रही है। जब करंट उसमें से पास हुआ तो वो जो है वो डिफ्लेक्शन उसने शो किया, दैट बेसिकली शोज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होती हैं दे आर प्रिपेयर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को प्रिपेयर किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को प्रिपेयर करने के लिए एक आयरन सिलेंडर लेते हैं, ठीक है। आयरन सिलेंडर, हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड? टेक एक आयरन सिलेंडर, this is basically the cylindrical like structure, and the wire is wound on this cylindrical like structure, ठीक है। अब फिर से वही सेम चीज है, यहां पर स्विच लगा है दैट इज एस, और यहां एक बैटरी लगा दी है दैट इज ई। जब स्विच एस क्लोज होगा, एस क्लोज होगा
तो इसमें से करंट आई जो है वो पास होगा। अब इस जो सिलेंडर है इसके नीचे क्या है, कुछ नेल्स रखे हुए हैं, यू कैन से सम आयरन नेल्स, these are iron nails। ठीक है, when switch S is in on position, जब S जो है वो on position में है, then these iron nails got attracted, कहां पर अट्रैक्ट होंगे, टुवार्ड्स दिस सिलेंडर। ठीक है, इस सिलेंडर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नाउ व्हेन जब S जो है वो ऑफ पोजीशन में है, these iron nails falls again on the floor, again at the bottom, you can say at the bottom or floor। यही प्रोसेस जो है वो रिपीट होता रहेगा। अब देखो, अभी जो इससे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या था कि कंपास जो है वो क्या होता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे ही हम करंट को पास करते हैं उसकी निडल जो थी वो डिफ्लेक्ट होती थी। इट मींस जब हम करंट को इससे बाउंड लाइक स्ट्रक्चर में से पास करेंगे, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर में से पास करेंगे, तो इट विल बिहेव प्रोड्यूस सम मैग्नेटिक इफेक्ट। वो कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट मैग्नेटिक इफेक्ट, उस मैग्नेटिक इफेक्ट की प्रेजेंस की वजह से ये आयरन नेल्स जो होती हैं ये सिलेंडर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जब एस जो है वो ऑन पोजीशन में है। जब एस जो है वो ऑफ पोजीशन में है तो आयरन नेल्स जो होंगे वो वापस अपनी जो उनकी रेस्ट पोजीशन थी उसी पोजीशन पे आ जाएंगी। नाउ दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू दिस सिलेंडर। So in this way electromagnets are produced। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है वो यूज कहाँ करते हैं? सबसे पहला इसका यूज है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करते हैं क्रेन्स के अंदर। क्रेन्स में हैवी लिफ्ट जब करना होता है, इन दैट पर्टिकुलर केस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूजेस, फर्स्ट वन इज क्रेन। क्रेन्स में यूज करते हैं फॉर हैवी लिफ्टिंग। ठीक है, हैवी लिफ्टिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द टू एक्सट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम द जंक। जो कबाड़ है, ठीक है, उसमें से मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को। द थर्ड यूज इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक बेल जो है वो किस तरीके से वर्क करती है। उसके लिए इलेक्ट्रिक बेल का डायग्राम मैं ड्रॉ करती हूँ। दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। इन दिस these are electromagnets. This I draw with blue color, right? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कौन कौन से हैं? ये वाला है और ये वाला है। दिस इज द स्विच। One is acting like north pole and another one is acting like south pole. This is the battery. This is known as gong. This is hammer. This is basically the screw contact. Screw contact. या contact screw you can say. This is the contact screw and this is
soft iron strip. This is the soft iron strip, right? When this switch is pressed, जब switch जो है वो on होगा तो करंट जो है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में से पास होगा, ठीक है। जब करंट इस वायर्स में से कॉइल में से पास होगा, देन दीज कॉइल्स आर एक्टिंग लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरह वो एक्ट करेंगे। जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरह एक्ट करेंगी तो उनके पास में क्या है, दिस आयरन स्ट्रिप है। ये आयरन स्ट्रिप जो है ये दिस गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट होगी। तो क्या होगा, ये हैमर जो है दिस स्ट्राइक्स द गोंग, ये गोंग को स्ट्राइक करेगा और एक साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। यहां तक तो हो गया। अब ये स्क्रू जो है दैट इज फिक्स्ड, तो इस आयरन सॉफ्ट आयरन जो स्ट्रिप है इसका कांटेक्ट जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट को टच करेगी तो ये कांटेक्ट स्क्रू के साथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। जब ये ब्रेकअप हो जाएगा तो सर्किट विल बिकम नाउ ओपन, सर्किट जो है वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा। क्योंकि देखो एक वायर जो है दैट इज कनेक्टेड टू दिस आयरन स्ट्रिप एंड अनदर वायर इज कनेक्टेड टू दिस कॉन्टेक्ट स्ट्रिप, ठीक है। तो सर्किट जो हो गया वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, देन दिस इज नो लॉन्गर एक्टिंग लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ये वर्क नहीं करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेगी तो क्या होगा, आयरन स्ट्रिप जो है वो वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन जो कॉन्टेक्ट स्क्रू है उसके पास आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिक बेल के अंदर स्क्रू जो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। दिस इज द सिंपलेस्ट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक बेल फॉर क्लास 7th एंड 8th, ठीक है। ये क्लास और 7th और 8th के लिए सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। नाउ द लास्ट इफेक्ट ऑफ द करंट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। केमिकल इफेक्ट में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब कंपाउंड्स के बारे में कुछ बात करेंगे, कंपाउंड्स में कुछ चेंजेस आते होंगे, दैट इज बेसिकली नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। अब केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है, कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जिसमें से करंट को पास किया जाए तो दे गेट आयोनाइज, वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। किसमें से, लिक्विड में से जब करंट को पास किया जाए, व्हेन पासेस द करंट then those liquids get ionized, वो क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। एग्जाम्पल इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में से जब करंट को पास किया जाता है तो इट विल गेट आयोनाइज्ड एंड दैट पर्टिकुलर, इस तरीके के जो लिक्विड होते हैं दे आर एक्टिंग लाइक इलेक्ट्रोलाइट। जो कल हम सेल्स के अंदर पढ़ रहे थे ना बेसिकली कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वो इस तरीके के केमिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। अब आयोनाइज होने के बाद में क्या होगा, ये ऑपोजिट प्लेट के ऊपर जाकर के डिपॉजिट होंगे एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। These ionized elements get deposited on the opposite plate. Means अगर वो पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव आयन है तो वो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप होगा, और रेजिस्टेंस डेवलप होने के बाद में हमारे पास करंट का फ्लो जो होगा दैट विल बी इफेक्टेड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस से हमारे पास एक और प्रोसेस आता है दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, जो प्रीशियस मेटल होते हैं उनकी कोटिंग ओवर द चीप मेटल, प्रीशियस मेटल लाइक गोल्ड और सिल्वर की प्लेटिंग जो है वो किसी चीप मेटल के ऊपर लाइक एल्यूमिनियम के ऊपर की जाए या किसी और सस्ते मटेरियल एलिमेंट के ऊपर की जाए,
दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। अब इसको यूज कहाँ करते हैं? जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस वाला जो प्रोसेस था, दैट प्रोसेस इज यूज टू प्यूरिफाई द मेटल, प्यूरिफाइंग ऑफ मेटल्स में यूज किया जाता है। इम्प्योर रोड लेते हैं, ठीक है, एक इम्प्योर मेटल की रॉड लेने के बाद दैट इम्प्योर रॉड इज ट्रीटिंग एज impure rod is treated as positive pole, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा? जब इसको इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम डालेंगे इम्प्योर रॉड को, वो गेट आयोनाइज, तो वो क्या करेगी? हमारे पास डिपॉजिट होगी और एक और रॉड जो है वो फॉर्म होगी, दैट इज प्योर रॉड, एंड दिस प्योर रॉड इज एक्टिंग लाइक नेगेटिव पोल। प्योर रॉड जो है that is acting like negative pole. So in this particular case, जो जहां पर प्यूरिफाइंग ऑफ मेटल जो है वो यूज किया जाता है, यहाँ सिर्फ मेटेलिक सॉल्यूशन जो होगा that is basically acting like as electrolyte, सिर्फ मेटेलिक सॉल्यूशन ही वर्क करेगा एज अ इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ करंट, बट one more thing is there, that is how the electricity is saved and why we need to save the electricity. देखो पहले के टाइम पर क्या होता था? बल्ब यूज होता था, बल्ब यूज होता था तो वहां पर क्या होता था? आपका हीट जो है वो जनरेट होती थी। दैट हीट इज नॉट यूजफुल फॉर अस, वी need the light basically, so that heat is basically the wastage of electricity. वो क्या थे? सिर्फ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी। सो उस वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को कम करने के लिए क्या यूज किए जाते थे? ट्यूबलाइट्स यूज की जाती थी, या आज की डेट में हम CFL जो होती हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज को, या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंजर्व करने के लिए बेसिकली क्या यूज कर सकते हैं? CFL यूज कर सकते हैं। जहां पर जरूरत नहीं है वहां के स्विच ऑफ, वहां के बटन्स को हम स्विच ऑफ कर सकते हैं। दीज आर बेसिकली द कॉमन पॉइंट्स दैट आर यूज्ड, दैट वी कैन यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। So this is all about the chapter electricity. So today's chapter electricity is over from my side. Still, if you are facing any difficulty in any of the topic, please post your comment in the comment box. Please like, share and subscribe the channel for the video notification. Thank you.